lovely challams. Welcome, சுஸ்வாகத்தம் டு ஜாலியோ ஜாலி ஹிந்தி கிளாஸ். நம்ம ஹிந்தியில் வியாக்கரணம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு மரத்துக்கு ரூட் எவ்வளவோ முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு லாங்குவேஜுக்கு கிராமர். ஸோ கிராமர் வந்து நம்ம நல்லா ரசிச்சு ஜாலியாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம படித்தோம்னா அது நமக்கு நல்லா புரியும். டீக்கே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? वाक्य के भेद, परिभाषा, उदाहरण. That is sentence, types of sentence, its definition and example. Okay, now let's start. तैयार हैं आप लोग? First, वाक्य की परिभाषा. दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं. A meaningful group of two or more words whose complete meaning comes out is called a sentence or वाक्य. उदाहरण के लिए, for example, सत्य की विजय होती है, truth prevails, एक वाक्य है. இது ஒரு सेंटेंस. ओके, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है. ஏன்னா இது ஒரு कंप्लीट मीनिंगफुல்லா இருக்கு. किंतु सत्य विजय होती, ஆனா இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, சத்தியனா ட்ரூத், விஜய்னா விக்டரி, ஹோத்தினா would have been. இது கொஞ்சம் மீனிங்லெஸ்ஸா இருக்கு. சோ वाक्य नहीं है, இது வந்து சென்டென்ஸ் கிடையாது. क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है, because it has no meaning. Okay, now let's see its types. இப்போ वाक्य வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆயிருக்கு. फर्स्ट वन इज अर्थ के आधार पर, on the basis of meaning. सेकेंड वन வந்து रचना के आधार पर, on the basis of formation or creation. अर्थ के आधार पर ல 8 types இருக்கு. फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य, that is assertive or declarative sentence. सेकेंड वन is निषेधवाचक वाक्य, negation sentence. थर्ड वन is प्रश्नवाचक वाक्य, interrogative sentence. फोर्थ वन is इच्छावाचक वाक्य, optative sentence. फिफ्थ वन is संदेहवाचक वाक्य, skeptical sentence. सिक्स्थ वन is आज्ञावाचक वाक्य, imperative sentence. सेवेंथ वन is संकेतवाचक वाक्य, indicative sentence. एट्थ वन is विस्मयवाचक वाक्य, exclamatory sentence. नेक्स्ट इज रचना के आधार पर, that is on the basis of formation or creation. அதுல 3 types இருக்கு. first one सरल वाक्य, simple sentence. second one संयुक्त वाक्य, compound sentence. third one मिश्रित वाक्य, complex sentence. now let's see one by one. अर्थ के आधार पर, that is on the basis of meaning. first one विधानवाचक वाक्य, assertive और declarative sentence. जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए, या एक सरल वाक्य जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं. A sentence by which action or condition is found to be done, or a simple sentence containing subject, object and a verb is called विधानवाचक वाक्य. Very simple. எந்த சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் verb இருக்குதோ அதுதான் विधानवाचक वाक्य. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुरेखा पत्र लिख रही है. सुरेखा is writing a letter. काम का करना, डेफिनेशनல பாருங்க, काम का करना இருக்கா, to do work வந்துடுச்சா. सेकेंड वन பாருங்க, पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड. बात का होना, टू बी स्पोकन, है ना. थर्ड वन ध्रुव बजाज बहुत बोलता है. ध्रुव बजाज स्पीक्स अ लॉट और टॉक्स अ लॉट. बोलने की क्रिया, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग. ओके. फोर्थ वन प्रणव राय अक्लमंद है. प्रणव राय इज इंटेलिजेंट. अक्ल का होना, to be wise. Okay, first one clear. Now second one निषेधवाचक वाक्य, that is negation sentence. जिस वाक्य से किसी काम के
न करने या स्थिति के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं. Sentence which gives the sense of not doing any work or not having a situation is called negation sentence or निषेधवाचक वाक्य. For example, जैसे इसे मैं न कर पाऊंगा, I can't do it. Second one, मयंक ने खाना नहीं खाया, मयंक did not eat food. Third one, इस काम को मत करिए, don't do this work. Fourth one, कूड़ा सड़क पर मत फैलाओ, don't spread garbage on the road. Is it clear? Third one, प्रश्नवाचक वाक्य, that is interrogative sentence. जब वाक्य में प्रश्न किया जाए या जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. When the question is asked in the sentence or in which what, who, when, where, how, whose, why words are used, it is called as பிரஷ்னவாச்சக் வாக்கிய. நம்ம சிம்பிளா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், क्वेश्चन मार्क இருந்தாலே அது பிரஷ்னவாச்சக் वाक्यன்னு புரிஞ்சுக்கணும். है ना? जैसे फर्स्ट वन, कल तुम्हारे साथ कौन था, who was with you yesterday. सेकेंड वन, तुम घर जाकर किससे मिले, whom did you meet when you went home. थर्ड वन, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, is your father a doctor. फोर्थ वन, रमा घर कब आएगी, when will Rama come home. Now next, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. सेंटेंस इन विच देयर इज अ सेंस ऑफ डिजायर, ब्लेसिंग, बेस्ट विशेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज इच्छावाचक वाक्य. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जीवन सुखमय हो, मे यूर लाइफ बी हैप्पी, शुभकामना मीन्स बेस्ट विशेस. ठीक है? सेकेंड वन, आयुष्मान भव, लॉन्ग लिव, इट इज अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद. नेक्स्ट, ईश्वर सबकी सहायता करें, गॉड हेल्प एवरीवन, अदेनिदी इच्छा, विश. फोर्थ वन, काश मेरे पास कार होती, इफ ओनली आई हैड अ कार, இது வந்து நம்மளோட ஆசை, இच्छा, விஷ். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இஸ் சந்தேகவாச்சக் वाक्य. சந்தேகனாலே அதுல டவுட்ஃபுல், है ना? அந்த वर्डலயே நமக்கு मीनिंग இருக்கு. जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं. The sentence which gives a sense of doubt or possibility about the work being done is called as संदेहवाचक वाक्य. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद आज वर्षा हो जाए, इट माइट रेन टुडे. सेकेंड वन, पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, डैड मस्ट हैव कम होम बाय नाउ. इट्स डाउटफुल, है ना? ओके, क्लियर है? सिक्स्थ वन, आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, विनय, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं. द सेंटेंस विच गिव्स सेंस ऑफ कमांड, ऑर्डर, मॉडेस्टी, एडवाइस, प्रेयर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज आज्ञावाचक वाक्य. ठीक है? जैसे फर्स्ट वन, सभी छात्र खड़े हो जाओ, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, आज्ञा, आदेश, ऑर्डर, कमांड. नेक्स्ट, कृपया शांति से बैठिए, प्लीज सिट इन पीस, विनय, विनय मीन्स मॉडेस्टी. ठीक है? नेक्स्ट वन, संकेतवाचक वाक्य,
इंडिकेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। A sentence in which the presence of one verb depends on the other verb is called संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। इफ इट रेन्स ऑन टाइम द क्रॉप विल बी गुड। निर्भरता, डिपेंडेंसी है ना। नेक्स्ट, जब दिनेश आए तब हम सब देहरादून चलेंगे। When दिनेश कम we will all go to देहरादून। संकेत इंडिकेट பண்றது है ना। ओके, नेक्स्ट, विस्मयवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य से हर्ष, विस्मय दैट इज आश्चर्य, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। Sentences that express feelings of joy, astonishment, sorrow, sadness, etc. are called as विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे हाय बेचारा लुट गया, இதனா தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும்। ஐயோ பாவம், he is being robbed। शोक, शोकना grief, sorrow। ओके, अरे पिताजी आ भी गए। ओह, डैड हैज आल्सो कम। विस्मय ना, astonishment। ओके, नेक्स्ट, आहा कैसा सुहावना मौसम है। ओह व्हाट अ नाइस वेदर। हर्ष, हर्ष ना जॉय। ठीक है, नेक्स्ट इज वाह क्या मौसम है। वाओ व्हाट अ वेदर। प्रसन्नता दैट इज हैप्पीनेस। இப்போ விஸ்மயவாச்சक வாக்கியனாலே எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க், அதை பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சிரும்। ठीक है, ஈஸியா, गुड। नेक्स्ट इज रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन। இது வந்து 10th போர்டு எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்। மெயினா இதுல இருந்தா क्वेश्चंस கேக்குறாங்க, அதனால நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க। फर्स्ट वन इज सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य एक ही विधेय होता है, ओनली वन प्रेडिकेट। उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, देयर इज ओनली वन वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मुकेश पढ़ता है, एज मुकेश स्टडीज, இதுல verb என்னது पढ़ता। नेक्स्ट इज राकेश ने भोजन किया, सो राकेश हैड डिनर, இதுல verb किया। सो मेन थिंग सरल वाक्यல என்ன கவனிக்கணும்னா there is only one verb, only one क्रिया। ओके, क्लियर। सेकंड वन इज संयुक्त वाक्य, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय कंजंक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया ஒரு சென்டென்ஸ், शाम को लौट आया செகண்ட் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்। இப்போ இது ரெண்டுமே और வச்சு தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு। ओके, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। He went in the morning and returned in the evening. Next, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो ஒரு சென்டென்ஸ், असत्य नहीं இன்னொரு சென்டென்ஸ், அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது पर। ஓகே, ஸ்பீக் கைண்ட்லி பட் நாட் அன்ட்ரூ। இல்ல மெயினா என்ன வேர்ட்ஸ் வரலாம், लेकिन, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, अतः आदि। இப்போ இதுல ஒன் பாயிண்ட் ரொம்பவே கவனிக்கக்கூடியது என்னன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க। राम और श्याम खेलने गए, இதுல என்ன राम और श्याम
அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது என்னது ஆர். ஸோ இது வந்து சயுக்த வாக்கியில் வரலாமான்னு கேட்கலாம் நீங்கள். நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இது வந்து ரெண்டு வேர்ட்ஸை தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு, ராம் ஆர் ஷாம். நான் என்ன சொல்கிறேன், ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸு, அதுதான் சயுக்த வாக்கிய. நம்ம சென்டென்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். கிளியரா? Now third one is मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं. Sentences which have a main sentence and other dependent clauses are called complex sentence. इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं. They have more than one conjunctive verb in addition to a main object and main predicate. ठीक है? जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया. As soon as he drank the medicine, he fell asleep. Second one, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे. If you work hard, you will pass. Third one, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो. I know that you are very nice. இப்போ இதில் மெயினாக என்ன வேர்ட்ஸ்லாம் வருதுன்னு பாருங்க. की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जब तक, ज्यों, जहाँ तक, यदि, तो, अगर तो. அவ்வளோதான். ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, குட். ஓகே, கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு குட்டி ரீகேப். वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं. वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर. अर्थ के आधार पर के 8 भेद होते हैं. पहला विधानवाचक वाक्य, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो. दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिसमें न का प्रयोग होता है. तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है. चौथा इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि होती है. पांचवा संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह अथवा संभावना होती है. छठवा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, आदेश, सलाह, विनय होती है. सातवां संकेतवाचक वाक्य, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है. आठवां विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें हर्ष, विस्मय, शोक, दुख आदि होती है. अगला रचना के आधार पर पहला सरल वाक्य, जिसमें एक क्रिया होती है. दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसमें दो वाक्य के बीच समुच्चय बोधक अव्यय होती है. तीसरा मिश्रित वाक्य, एक से ज्यादा उपवाक्यों का योग होता है. अवलोदान मुड़िंजिச்சு. समझा आप लोगों को? अच्छा, फिर मिलते हैं. बाय टू ऑल माय कुटी लवली चेल्लम्स. टेक केयर.